नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आखिरी दिन जिस तरह से राज्यसभा में जो हुआ उससे संसद की मर्यादा एक बार फिर से तार-तार हुई। विपक्ष के बागी तेवर अब सरकार से आगे बढ़कर सभापति से तकरार करने की तरफ निकल चुके हैं। दरअसल आज जो संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में हुआ वो विपक्ष के बदलते तेवर या कह लीजिए कि विपक्ष के बागी तेवर हैं। राज्यसभा में सामुदायिक विषयों की चर्चा न होकर टोन और बॉडी लैंग्वेज पर तीखी नोक-झोंक हुई। विपक्ष ने टोन को लेकर तो पहले हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी। इन सब के बीच देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इस तरह का व्यवहार कर रहा है जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष लगातार सिर्फ हंगामा कर रहा है। ये बात उपराष्ट्रपति को इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि जिस तरह से नाम के विवाद में पूरा विपक्ष कूद पड़ा वो सदन और विपक्ष दोनों की गरिमा से इतर है। दरअसल धनखड़ ने समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया बच्चन ने सभापति की टोन पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज को बखूबी समझती हूं, एक्सप्रेशंस को समझती हूं। मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे आपका टोन पसंद नहीं आया। आपके बोलने का टोन मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये सुनकर धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। Last speaker on this point, please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode
to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get. No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy. तो राज्यसभा के अंदर जो हुआ आपने देखा, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। आपको सुनाते हैं राजनेताओं ने किस तरह से इस पर अपना रिएक्शन दिया है, सुनिए। कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. जया बच्चन इसीलिए तो खड़े हुई थी. जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं. जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई. मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि घनश्याम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कुछ दिन पहले. हमने खत लिखा, हमने ये कहा इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए. आज हमें कहा गया कि घनश्याम तिवारी जी आए, हमसे मिले और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को की खूब प्रशंसा की. वो प्रशंसा क्यों सदन में नहीं वो जताते? सदन में तो अपमान हुआ है. घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी. इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है. हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना तो सदन की है ना, कहीं अलग तो हुई नहीं है. तो जो सदन की घटना है, सदन के बारे में डिस्कशन यहाँ होना चाहिए. इसी तर्क को आदरणीय जया जी, जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं. और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है. स्वागत कर लेते हैं. हमारे साथ सारिका सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ओमकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं. इसके अलावा हमारे साथ जो है मौजूद है आलोक वत्सी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ओमकारेश्वर जी का पहले रुख करना चाहूंगी. ओमकारेश्वर जी, आपको क्या लगता है जया बच्चन को किस बात से आपत्ति हुई, किस टोन टोनालिटी का जिक्र उनके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से बनी है ये तीसरी बार एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तब से हम देख रहे हैं कि टकराव हो रहा है. इसके पीछे ये भी है कि दोनों पक्ष अभी भी चुनावी मूड में है, तो और ताकत दिखा रहे हैं. विपक्ष के पास
इस समय जिम्मेवारी ज्यादा है कि वो सरकार पर दबाव बनाए, सरकार से सवाल पूछे और कारगर तरीके से संसद में बहस की बात करे। सत्ता ये जिम्मेवारी देखिए जिसके पास जो सत्ता में रहता है ना, उसकी बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। सदन को शांतिपूर्वक चलाना और दोनों पक्षों को शांत रखना, ये तरीके से मूल बात। जो कांग्रेस के भी आपने जो बयान दिखाया, सबसे महत्व जिस घनश्याम तिवारी जी ने जो हाउस में कहा और जिसको लेके आए, तो उस बात का जिक्र हाउस में आके उनको करना चाहिए। अगर उनके वो प्राइवेट चैम्बर में जाके बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और हाउस में जाके उनका दूसरा बर्ताव रहा है, तो ये डिफरेंट है। इसी बात को उन्होंने उठाया है, तो मुझे लगता है कि चेयर को थोड़ा और इसको एमिकेबली सेटल करना चाहिए था। और बीइंग ए सीनियर मेंबर और लेडी मेंबर, एक महिला सदस्य है, उनको अगर कोई एतराज है तो मुझे तो लगता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, आप बताइए हम आपके साथ हैं। इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्ष किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं है और जरा जरा सी बात पे तलखी आ जा रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। सो आई कैन नॉट बी ए जजमेंटल की हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट, बट दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है और ये हम लोग देख पा रहे हैं। बजाय इसके कि सार्थक मुद्दों पे चर्चा हो, सार्थक मुद्दों पे बातचीत हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर, ये टकराव हमें देखने को मिल रहा है इस चुनाव के बाद। जी, सारिका सिंह जी भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। सारिका जी, बतौर महिला आपको क्या लगता है? कहा यह जा रहा है कि जया बच्चन को इस बात से आपत्ति हुई कि उनके नाम को जया अमिताभ बच्चन करके पुकारा गया, हालांकि नाम डॉक्यूमेंट में है। ऐसे में उनकी आपत्ति कितनी सही लगती है आपको? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जी, देखिए, जिस तरीके से हम 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में जो पार्लियामेंट, लोकसभा का और राज्यसभा का जो हम वर्किंग लगातार देख रहे हैं, आपको उसमें एक सत्ता पक्ष के अंदर बौखलाहट नजर आती है। आप चाहे लोकसभा ले लीजिए, चाहे राज्यसभा ले लीजिए, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर व्यवहार किया जाता है, जहां हमारे जो एलओपी है, राहुल गांधी है, उनको उनकी पूरी बातों को बोलने का, स्पष्ट रूप से उनको सुनने का, बीच बीच में टोकने का, और एक ये अलग तरीके की अनपार्लियामेंट्री जो बिहेवियर चल रहा है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है और कहीं भी संसदीय परंपराओं के हिसाब से वो सही नहीं। अगर आप बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो इतने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लीडर है और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, अगर घनश्याम तिवारी जी ने उनको लेकर के असंवेदनशील कोई भी बात की और उसको जाकर के बंद कमरे में अपोलॉजी करते हैं, तो क्यों नहीं सदन के सामने, जो बात आपने सदन के सामने की है तो उसका खंडन भी आपको सदन पर ही करना चाहिए। एक बंद कमरे में जाकर के आप माफी मांगे या उसको आप क्लियर आउट करने की, वॉश आउट करने की कोशिश करें, तो ये संसदीय परंपराओं के हिसाब से सही नहीं है। अगर हम बात आज की राज्यसभा की प्रोसीडिंग की करते हैं, तो देखिए, जया बच्चन खुद अपने आप को जया अमिताभ बच्चन के नाम से ही बुलाती हैं, उनका अधिकृत नाम वही है, डॉक्यूमेंट्स में वही। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति लगातार उनको बोल रहे हैं, उनको बात करने का जो उनका टोन है, किस तरीके बिल्कुल से आपको यही लगे। देखिए, आप और हम सभी देख रहे हैं। हाँ। देखिए, वो सभापति है, लेकिन जो सामने बैठे हैं वो भी इस देश के बहुत सारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। वो कोई सड़क से आकर के या कोई उठ करके छोटे मोटे ग्रुप का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो उनके साथ में जो व्यवहार किया जाए, जो पार्लियामेंट्री की एक आचार संहिता है, उसके हिसाब से उनके साथ में व्यवहार किया जाए। और यही बात सिर्फ विपक्ष है, वो लगातार कह रहा है कि हम देश के लोगों की बातों को, अभी आप देखिए, पहले किसान का, चलिए आजम खान साहब का भी रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं, प्रवक्ता है आजम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजम जी, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए सिर्फ हंगामा बरपाने की नियत से किसी भी बात को टाला जा रहा है और उसी पर एकजुट हो जा रहे हैं। जी मैडम, बिल्कुल गलत बात है ये। विपक्ष के पास मुद्दे हैं। विपक्ष तो कल जब सभापति महोदय नाराज हुए तो विपक्ष यही तो कह रहा था कि विनेश फोगाट पे आप चर्चा करवाइए, तत्काल चर्चा की जरूरत है। लेकिन सभापति महोदय ने टाइम नहीं दिया।
सत्ता पक्ष ने भी हुटिंग करी, उसी में मामला गड़बड़ हुआ और जो है सभापति महोदय को आहत होना पड़ा। ये अफसोस की बात है कि सभापति महोदय को अगर कोई ठेस पहुंची है किसी भी सांसद से, इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन मसला क्या है, पिछले 2 टर्म में जो लोकसभा और राज्यसभा चली है वो बिल्कुल तानाशाही तरीके से चली है। विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही थी। अब चूंकि विपक्ष मजबूत है और वो अपनी आवाज सुनवाना चाहता है और सत्ता पक्ष लोग सुनना नहीं चाहते, और सत्ता पक्ष से जो संबंधित लोग हैं यानी जो स्पीकर है सभापति महोदय, कहीं न कहीं ये अभी भी अपना भाजपा का प्रेम छोड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि अगर आप सभापति बन गए, लोकसभा स्पीकर बन गए, तो आपको अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन ये लोग अपनी दलीय हित को अभी भी छोड़ नहीं पा रहे, जबकि स्पीकर और सभापति की कुर्सी यकीनन बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है, बहुत ही निष्पक्ष कुर्सी होती है, लेकिन वो भूमिका ना ओम बिरला जी निभा पा रहे हैं, ना वो भूमिका माननीय उपराष्ट्रपति और सभापति धनखड़ जी निभा पा रहे हैं। इसीलिए सारा टकराव है। कहीं न कहीं जो 10 सालों में अहंकार भाजपा का था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा भी और समय जाएगा तब इन्हें समझ में आएगा कि विपक्ष जो। चलिए आलोक जी का पक्ष भी जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम आरोप तो लग चुके हैं। आलोक जी, आपका पक्ष क्या है इस बात पर? कहा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा है विपक्ष के साथ, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही, आवाज दबाई जा रही है। देखिए, विगत कुछ दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से ही आपने देखा है कि विपक्ष न लोकसभा चलने दे रहा है न राज्यसभा चलने दे रहा है। लड़ाई के लिए लड़ाई, किसी एक बात को जिसका कोई महत्व हो या ना हो उसको पकड़ के ये हंगामा खड़ा कर देते हैं, जबकि एक स्वस्थ विपक्ष का काम है एक्सपोज, डिपोज, प्रपोज। ये सिर्फ किसी बात को लेके एक्सपोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद सदन चलने नहीं देते हैं। रूल ऑफ बिजनेस तो हो ही नहीं रहा, बिल सब पास हो रहे हैं ऐसे ही बगैर डिस्कशन के। तो ये जो रवैया है विपक्ष का, मैंने देखा है धनखड़ साहब का और जया जी का पूरा वीडियो। धनखड़ साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है। अगर उनका पूरा नाम लिया है तो वो उनका नाम है, वो रिकॉर्ड में वो नाम है। और अगर उनको कहा कि आप सेलिब्रिटी हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? सेलिब्रिटी तो है ही, वो जानी मानी सेलिब्रिटी है। इस बात को लेकर इतना तूल देना और इतना हंगामा खड़ा करना, ये कहां से उचित है? आप चलने ही नहीं दे रहे पार्लियामेंट। किसी एक एक्चुअली दिस इज अ नॉन इशू, इसको आपने इतना बड़ा इशू बना दिया है। तो अगर इसी तरीके से आपने पार्लियामेंट चलाना है तो लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के जी, कि किस तरीके का आपका व्यवहार है। जी चलिए ओमकारेश्वर जी का रुख कर लेते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपको क्या लगता है विपक्ष को अगर अपना एतराज जाहिर करना है, अगर मुद्दों पे जाहिर करे तो ज्यादा बेहतर होगा? इस तरह की चीजों से सिर्फ सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर? या वो जो मैसेज विपक्ष कन्वे करना चाह रहा है वो मैसेज जो है पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है? ओमकारेश्वर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। चलिए, ओमकारेश्वर जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। सारिका जी का रुख कर लेते हैं। सारिका जी, जैसा कि मैंने अभी ओमकारेश्वर जी से भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं विपक्ष अगर अपना मुद्दा रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो अगर सही मुद्दों के जरिए आप अपनी बात उठाएंगे तो ज्यादा सकारात्मक तरीके से वो मैसेज आम जनता तक भी पहुंच पाएगा। लेकिन अगर इस तरह से ये चीजें डाइल्यूट होंगी कि टोनैलिटी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वीडियो जो है वो सभी ने देखा, वो टीवी पर लगातार प्ले हो रहा है, जिसमें जया बच्चन जो है वो एतराज जाहिर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि वहां पर सभापति जो है
वो उनका अपमान करने के मकसद से उनका टोन जो है कहीं चेंज हुआ है? जी मोनिका जी, देखिए मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँ, इस बात का ये सिर्फ आज का ही एक विषय नहीं है या आज के किसी घटना से प्रेरित ये बात नहीं है। पिछले काफी समय से, पिछले 4-5 महीने से, जब से सरकार ये बीजेपी को पूरा मैंडेट नहीं मिला और ये एनडीए की सरकार के ऊपर, बीजेपी इतने दिन ये बीजेपी पे थे, अभी ये एनडीए की सरकार पे है, तो जो बैसाखियों पर ये चल रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है तब से आप देखिए कि लोकसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो पेपर लीक की बात कर रहे थे, उसके ऊपर वो डिस्कशन करना चाहते थे, उसके ऊपर उनको किसी तरीके का उनको डिस्कशन करने की अनुमति नहीं दी गई। जबकि आप देखिए कि वो एक ऐसा सेंसिटिव विषय है देश के युवाओं को लेकर के, जी, उसके भविष्य को लेकर के हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, जब पहले दिन से राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि हम एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव विपक्ष की भूमिका पार्लियामेंट में निभाएंगे, लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो मछुआरों का मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो जो आपदाएं हैं, जो ट्रेन एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, उनके ऊपर अगर वो किसी तरीके की श्योरिटी चाहते, तो आप देखिए कि लगातार जो सत्ता पक्ष के मंत्री, आप पिछले दिनों का एक लोकसभा का इंसिडेंट ले लीजिए कि जो आरएलपी के नेता हैं, सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने एक वक्तव्य मांगा और किस तरीके से रेल मंत्री ने उनको लोकसभा में अपमानित करने का प्रयास किया। तो इस तरीके की अगर कार्यशैली सत्ता पक्ष की रहेगी तो ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि वो किसी तरीके के प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव रूपरेखा को लेकर के पार्लियामेंट को नहीं चलाना चाहते, क्योंकि ये सरकार तानाशाह है। पहले दिन से ये पूरे देश को एक प्राइवेट कंपनी के जैसे चलाना चाहते हैं, जिसमें 2-3 लोगों के सिर्फ भावनाएं हो, 2-3 लोगों के जिसके अंदर डिसीजंस हो। ये कभी मन करता है आधी रात को उठ करके आके नोटबंदी लगा देते हैं, कभी मन करता है जीएसटी बिना किसी होमवर्क के लगा देते हैं, फिर मन करता है अग्निवीर लगा देते हैं, फिर मन करता है काले कानून ले आते हैं, जो बिना किसी डिस्कशन के, जिनको ये आदत पड़ चुकी है कि उनको सिर्फ मनमानी करनी है। और अब स्थिति बदल चुकी है। आप पार्लियामेंट की अगर टीम देखें तो इसमें एक बहुत विपक्ष मजबूत स्थिति में खड़ा है और लगातार वो डिमांड कर रहा है कि हम देश के मुद्दों को बिना डिस्कशन के और बिना उनके ऊपर चर्चा हुए हम जनता के अगेंस्ट के मुद्दों को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होने देंगे, उनको पारित नहीं होने देंगे। और इसी बात से सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता पक्ष है, वो घबराती है, क्योंकि इनका मोड डिस्कशन का कभी रहा ही नहीं। आप पिछले 10 सालों में देख लीजिए, किसी भी विषय, इतने गंभीर विषयों पर इन्होंने चर्चा नहीं की और विधेयक पारित कर दिए बिना किसी चर्चा के और उनको कानून बना दिया। हालांकि इनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन आप देखिए कि उस प्रोसीजिंग में कितने कितने लोगों तो सरकार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तानाशाही के आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार सत्ता नहीं चाहती है, वन वे ट्रैफिक की तरह चल रही है। इस पर मैं आलोक जी की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं आलोक जी का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो हर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि जो वो चाहे वो तुरंत पूरा हो जाए, उस पर विपक्ष अपनी राय ना दे, ना विपक्ष की तरफ से विरोध जाहिर किया जाए। कितनी बार डिबेट के लिए तैयार हुए वे लोग, बस किसी मसले को पकड़ा और उस पर हंगामा खड़ा कर दिया और उसके बाद कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज तक इन्होंने किसी चीज में अलाउ किया है कि पार्लियामेंट चले, डिस्कशन हो, डिबेट हो? पार्लियामेंट का स्तर गिरा दिया है इन्होंने। इस तरीके से नहीं होता है। आप डिस्कशन के लिए तैयार होइए, कौन डिस्कशन से मना कर रहा है? लेकिन आप तो हंगामे के अलावा कुछ करते ही नहीं है। मोनिका, कल जो कल घटना हुई
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई कि ये विनेश फोगाट पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। विपक्ष विनेश फोगाट पर चर्चा मांग चलिए रहा आजम जी, था। पहले आलोक जी की बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास ही आ रही हूँ उसके बाद। इस बात में कोई दम हो या ना हो, प्रिविलेज यूजलेस मुद्दों को पकड़ के हंगामा खड़ा करते। आप बताइए आलोक जी, क्या विनेश फोगाट पार्लियामेंट एक संवेदनशील विषय नहीं है? क्या विनेश फोगाट पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? चलने नहीं वो संवेदनशील विषय नहीं है। किसी भी कीमत वो भारत की बेटी आपने जो सिल्वर मेडल उसका पक्का था, गोल्ड मेडल पा सकती थी। आपके भारत सरकार की लापरवाही से मेडल छिन जाता है और आप कहते हो ये संवेदनशील विषय नहीं है। अब इससे ज्यादा संवेदनशील विषय क्या चाहिए आपको? विनेश फोगाट से ज्यादा संवेदनशील विषय क्या हो सकता है? हमें तो नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। जिस अजीब बात जिस बेटी का विनेश फोगाट के पदक से भारतीय जनता सिल्वर पार्टी का क्या मेडल लेना पक्का देना है? था, वो सिल्वर मेडल भी चला गया, वजन बढ़ गया, गोल्ड हमने मेडल बढ़ा भी दिया मिल था। सकता था। हम तो उनके जो लिए लड़ाई लड़ रहे लापरवाही हैं। ओलंपिक संघ अरे, के भारतीय फालतू की बातें मत ओलंपिक संघ कीजिए। के लोगों ने आप बरती, गलत बयानी कर कुश्ती रहे हैं। संघ के लोगों ने बरती, उसका क्या है? आपको ये क्या आपका उसपे गलत बयानी जो पसंद नहीं आ माननीय रहा है। सांसद है वो सरकार से जवाब भी नहीं मांग सकते? यही तो मांग रहे थे कल हम लोग। कल राज्यसभा में विपक्ष विनेश फोगाट पे ही जवाब मांग रहा था और कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष उसे चर्चा करने को तैयार नहीं है। और माननीय सभापति लोग, स्पीकर महोदय, सभापति महोदय अभी सत्ता पक्ष के मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये हम लोगों की एक समस्या है। जी मोनिका, इस बात का कोई मकसद नहीं हो। आलोक जी, आरोप ये भी लगे हैं कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी को पूरे देश ने सुना है, आपने भी सुना है। ये तो कब माइक बंद हो गया? भी देख रहा है ना, पूरे कब देश कब ने माइक सुना है। बंद उनकी किया एक एक गया है, चीज उन्होंने कब कितनी कब तस्वीरें माइक दिखाई बंद है, किया सब जाता लोगों है, ने कब देखी है। कब टीवी ऑफ ऐसा कर कोई दी तानाशाही जाती है, थोड़ी है तो पूरा देश जब देख रहा माइक है। बंद कर देंगे राहुल गांधी का। और बिल्कुल राहुल अगर गांधी का माइक नहीं बंद हुआ है। ये विनेश फोगाट का विषय झूठ उल्टे झूठ संवेदनशील बात है। नहीं लगता है, जबकि थोड़ा सा जब विवाद हुआ था उससे पहले तो सभापति महोदय खुद कहने लगे थे कि मैं जाट समुदाय का हूँ और ये जाट समुदाय का अपमान है। ठीक है तो सर। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ है वो है। किसका अपमान है? वो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ठीक है। विनेश फोगाट से मोनिका होता क्या है? मोनिका, विनेश फोगाट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन रूल होता है। ठीक है सर। रूल होता है। अगर इस तरीके से ठीक है सर, ओमकारेश्वर जी का रुख कर लेते हैं। सपोर्ट में रहते हैं। ठीक है सर, आप लोगों के पास में आ रही हूँ लौट के। ओमकारेश्वर जी का रुख कर लेते हैं। ओमकारेश्वर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, सरकार का कहना है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा बरपा रहा है। और जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमने देखा तो ना अब संसद में राष्ट्रपति का सम्मान हो रहा है, ना सभापति का सम्मान हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो स्तर है वो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, यूपीए 2 के समय याद कीजिए, जिस समय अपोजिशन लीडर जो है सुषमा स्वराज थी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे अरुण जेटली जी। उस समय 60% टाइम जो है संसद का बर्बाद हुआ था, क्योंकि अपोजिशन इन दोनों नेताओं का ये कहना था कि उनका हक है आवाज उठाना, उनका हक है हाउस को बाधित करना और हम जिस तरह से चाहते हैं हमारे मुद्दों को उठाना। तो अपोजिशन का हमेशा, बीजेपी जब अपोजिशन में रहती है तो आवाज उठाती है, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में हो जाती है तो अपोजिशन के आवाज उठाने को उसको लगता है कि सत्ता की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है, सदन की कार्यवाही में। ये ठीक नहीं है। जो पॉपुलर इश्यूज हैं, जैसे विनेश फोगाट का इशू आज जन जन का इशू बना हुआ पूरे देश में। एक एक बच्चा देख रहा है कि विनेश फोगाट को क्या हुआ, कैसे हुआ ओलंपिक में। इस सवाल पे अगर विपक्ष डिस्कशन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें सरकार को इनकार करना चाहिए? तो जो अपोजिशन के प्रति रुख है सत्तारूढ़ दल का, उसको भी देखा जाना चाहिए कि आप देखिए, अपोजिशन दरअसल जनता की आवाज होता है, उस जनता की जिसने बड़ी संख्या में इस बार अपोजिशन को एक मजबूत वो देके भेजा है, वोट देके भेजा है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी में डिसिप्लिन हो, डेकोरम हो और ये डिग्निटी हो, इसको कायम करने की पहली जिम्मेवारी
सदन की होती है, सत्ता पक्ष की होती है, और अपने सांसदों को चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, सबको एक समान भाव से लेके चलना जरूरी है। आप कहते हैं कि जया अमिताभ बच्चन का पूरा नाम लेने में क्या बुराई है? नाम लेने में बुराई नहीं है, लेकिन जया बच्चन के नाम से वो जानी जाती हैं, एक महिला नेत्री हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, आप भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी के नाम से परिचित हैं, लेकिन कोई जानबूझ के कहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो ये क्या एक तरह से नहीं लगेगा कि जानबूझ के आप उनका नाम ले रहे हैं, पूरा नाम, ताकि उनको कहीं ना कहीं से एहसास दिलाएं? किसी को ये अपमान कैसे लग सकता है? अगर उसका पूरा नाम ले रहे हैं तो क्या ये अपमान की बात है? आपको लगता है वाकई में? देखिए मैडम, मैं बताता हूँ, तो ये टोन में तो फर्क आ ही जाता है ना। आप किसको किस रूप में बुलाते हैं, किस टोन से बुलाते हैं, उस टोन से बहुत बड़ा फर्क होता है। और एक महिला सांसद को तो बहुत सम्मान के साथ बुलाया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारा समाज सम्मान का भाव रखता है, तो उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखें, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, आजम जी। देखिए मोनिका जी, अपने जया बच्चन जी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में खुद कहा है कि जो सभापति जी का टोन है मेरे प्रति वो सम्मानजनक नहीं है। नाम लेने पे उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से लिया जाता है, हालांकि नाम का सर एक बार अभी भी जिक्र हुआ है, पहले भी जिक्र हुआ है जब जया बच्चन ने इस बात पर एतराज जाहिर किया है कि उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ना लिया जाए, जया बच्चन के नाम से उन्हें पुकारा जाए। तो इस बात को पूरी तरह खारिज तो नहीं कर सकते कि उन्हें इस बात से दिक्कत हुई है। अपनी बात रखिए आप जी। जी, और दूसरी बात वो कह रही थी कि सदन में खड़गे जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ, सदन में खड़गे जी से ज्यादा कोई भी वरिष्ठ नहीं है। वरिष्ठता में सभापति महोदय भी नहीं है, जितना पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस माननीय खड़गे जी को है उतना उनको भी नहीं है। और माननीय सोनिया गांधी भी उसी सदन की नेता है, और उसके बावजूद सदन में इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के प्रति जो शेयर का भाव है वो सम्मानजनक नहीं है। ये आज सभी लोगों ने कही है अपने प्रेस ब्रीफिंग में। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए हम लोग चाहते हैं सदन चले, और लेकिन विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष को ये एहसास हो जाना चाहिए कि अब उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी, उनका अहंकार नहीं चलेगा, उनका तानाशाही नहीं चलेगी। अब चलेगी तो बराबर की लड़ाई है, बराबर सदन विपक्ष की बात माननी पड़ेगी। सारिका जी, आपको लगता है कि इस तरह से अपनी बात रखने के बाद सदन से जब वॉकआउट किया गया तो मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे हो गया विपक्ष का? देखिए मोनिका जी, बात ये नहीं है कि हमने वॉकआउट किया था। वॉकआउट हमने पहले दिन से कहा है कि हम पूरे देश के जो मुद्दे हैं, जो इस देश के लोगों के मुद्दे, उनको पूरी आवाज के साथ संसद में उठाना चाहते हैं, जो कि विपक्ष में होने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक स्वाभिमान और अगर एक भेदभाव की राजनीति और वो भी पार्लियामेंट में की जाएगी तो निश्चित रूप से ये किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति आसन पे बैठा है वो अगर किसी भी पार्टी की विचारधारा से है, लेकिन आज वो आसन पे बैठा है और उसका ही दायित्व बनता है कि वो पार्लियामेंट्री आचार संहिता का पालन करे, सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को बराबर का मौका दे। देखिए पार्लियामेंट चलाने की जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है ना, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इस देश के किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, हर उस वर्ग की आवाज को पूरे पुरजोर तरीके से उठाया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। आप देखिए कि आज जया बच्चन के साथ हुआ, वो एक महिला है और बीजेपी का जो महिला विरोधी चेहरा है, जिस तरीके से इनके एमपी, एमएलए, इनके चुने हुए प्रतिनिधि लगातार महिलाओं का अपमान करते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स में जिनका इनमें मुख्यतः बीजेपी के नेता उसमें इन्वॉल्व भी पाए गए हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण आप लें तो जो हमारी रेसलर बहनें हैं, हमने देखा कि किस तरीके से उनके आंदोलन को, उनकी जायज मांगों को कुचला गया। और आज जब देश की बेटी विनेश किसी भी भेदभावपूर्ण तरीके से इंटेंशनली उसको मेडल लेने से वंचित किया गया, तो पीएमओ से सिर्फ एक सांत्वना का ट्वीट करके अगर उस मैटर को खत्म किया जाता है तो मोनिका जी आप समझ सकते हैं
ये देश और ये सरकार कौन सी भावना से चल रही है। देखिए, जिन बच्चियों ने उस समय जी आंदोलन किया वो उनकी वो परिस्थिति थी, लेकिन आज जो लड़की पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और पूरे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा करती, अगर उसके लिए आज हम खड़े नहीं हुए और अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आंदोलन किया था इसलिए हम इनके लिए ना बोले, इनके लिए हम ना लड़े, तो मोनिका जी ऐसे कैसे देश चलेगा। ठीक है। और अगर ऐसी परिस्थिति में भी विपक्ष सोता रहा और हम ना बोले तो निश्चित रूप से इस देश की जनता हमसे भी सवाल करेगी। आलोक जी, सकारात्मक मुद्दों को सरकार जो उठाना नहीं चाहती, विपक्ष की आवाज दबा रही है, महिला विरोधी होने का आरोप भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लग रहा है विपक्ष की तरफ से। जी देखिए अनिका जी, अभी ये विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं। जिस समय विनेश फोगाट के साथ ये हादसा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय पीटी उषा जी से बात की, जो आईओए की अध्यक्ष है, कि इसके ऊपर जो भी कड़ा से कड़ा कदम उठाना है उसको उठाइए, और सीएएस में वो केस दर्ज कराया गया, उसकी रूलिंग आनी बाकी है। देखिए, ये हमारे देश का मामला नहीं है, ओलंपिक एसोसिएशन का मामला है। हम वहां अपील कर सकते हैं, जो हमने पुरजोर ढंग से किया है। प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट के बारे में कहा कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियन हो, आप देश का गर्व हो, तो हमने कहां से उनके साथ खड़ा नहीं हुए। लेकिन हम वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर हैं, हम वहां की रूलिंग नहीं दे सकते हैं। उनके अध्यक्ष ने कहा, जो आपके भी चैनल पे दिखाया गया, कि रूल इज रूल। तो अगर इस तरीके से रूल को तोड़ने की कवायद होती रहे तब तो कुछ भी होता जाएगा। लेकिन हम विनेश फोगाट के साथ इसी तरह की घटना कीनिया के साथ खड़े हैं और कीनिया अपना मेडल लेने में कामयाब होता है। मोनिका, इसी तरह की घटना कीनिया के साथ घटती है और कीनिया को मेडल दिया जाता है। क्या भारत सरकार भारतीय ओलंपिक संघ अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता था? देश ये पूछना चाहता है कि जो लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी वो आपने नहीं लड़ी और झूठी हमदर्दी दे रहे हैं। झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हम अभी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। को झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। जो लड़ाई लड़ी वो नहीं लड़ी गई। आजम जी, जो आपको लगता है आज जब जया बच्चन का गुस्सा फूटा संसद में, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक फहरिस्त थी लंबी मुद्दों की? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत दिनों से चीजें बिल्कुल नॉर्मल नहीं चल रही थी। जैसे हम लोगों ने देखे, नीट के मुद्दे पे चर्चा चाहिए, मना कर दिया, और उसमें रेल एक्सीडेंट पे चर्चा चाहिए, मना कर दिया, विनेश फोगाट पे चाहिए चर्चा, मना कर दिया। अरे भाई, ये कोई सुख होता है? ये तीनों मुद्दे देश के बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं था। नीट में भी 24 लाख, हालांकि सवाल उन्होंने टोन और टोनालिटी पर उठाया, सवाल उन्होंने टोन टोनालिटी लैंग्वेज पर उठाया, बॉडी लैंग्वेज पर। ये बार बार आज उन्होंने खुद कही है, अब जो उन्होंने महसूस किया है वही बात कही है, और प्रेस में कही है, ये भी नहीं कि कहीं और कही है। जो बात, वो एक बुजुर्ग है, 5 बार की सांसद है जया बच्चन जी, 5 बार से 5वीं बार राज्यसभा मेंबर है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो। अगर उनके साथ कोई गलत तरीके की बात करी गई है तो यकीनन उन्होंने अपना विषय मीडिया में रखा है, और ये अब माननीय सभापति पे बनता है कि वो उसको कैसे देखते हैं। इस मामले को विपक्ष अब किस तरह से उठाएगा, आगे क्या स्टेप होगा? अभी तो आपने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष चाहता ये है कि विपक्ष को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, ना कि हे की दृष्टि से देखा जाए, ना कि ये समझा जाए कि ये लोग कहां से चले आए। भारत की जनता ने ही विपक्ष को वहां भेजा है और इतना स्ट्रांग बना के भेजा है कि सत्ता पक्ष को हर चीज पे जवाब मांग सके। ये मजबूती भारत की जनता ने विपक्ष को दिया है, तो ये भारत की जनता का भी अपमान है अगर विपक्ष के साथ न्याय नहीं होता है तो। ठीक है, सारिका जी। पोस्टमार्टमो
तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। यूक्रेन के युद्ध में देख लीजिए, छोटी सी बात पे लेके हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के बहुत बड़ा बवंडर बनाते हैं कि मैंने बात किया, फोन पे बात की, युद्ध रुकवा दिया, ये सब चीजें चलती रहती। तो अगर एक ओलंपिक में हमारी देश की बच्ची के साथ में अगर द्वेषपूर्ण वातावरण लेकर के और अगर उसको वंचित किया जा रहा है, और हम क्या मांग कर रहे हैं, हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच करवाई जाए, है ना। तो अगर ऐसे मुद्दों के ऊपर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी या देश के लोगों की बात को नहीं सुनेगी, तो फिर आप मुझे बताइए कि ये प्रोपेगेंडा करने का कि कभी आप युद्ध रुकवाने के लिए यूक्रेन के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, तो ये सब बातों पे क्या देश की जनता मूर्ख थोड़ी ही है, समझ नहीं रही है क्या। और फिर एक इतनी मतलब मैच्योर, इतनी अनुभवी सांसद और कई टेन्योर से जो सांसद हैं, अगर उनको सभापति, आप देखिए विजुअल्स में देख लीजिए कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से उनके चेहरे के हाव भाव हैं, और वो उन इतनी अनुभवी और एज्ड महिला को जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है ना। ये व्यवहार बिल्कुल गलत है। और यही बात जया जी ने कही है कि हम ये चाहते हैं कि इसकी माफी मांगी जाए, है ना। और जो भेदभावपूर्ण वातावरण संसद के सदनों में बनाया जा रहा है, उस परिपाटी को बदला जाना चाहिए। जो बीजेपी ने ये परंपरा शुरू की है कि वो सिर्फ अपने सांसदों को, अपने लोगों को बोलने का, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप अभी कल परसों के राजस्थान की विधानसभा की बात करिए, जहां पर एक चुना हुआ एमएलए, युवा एमएलए, जो लगातार अपने क्षेत्र की बातों को, युवाओं की बातों को विधानसभा में उठा रहा था, और उसने एक विधानसभा के जो मेंबर है सत्ता पक्ष का, उसके जो लड़के का अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर सवाल पूछना चाहा और उसको 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। आप बताइए ये कौन सी कार्यशैली है? इस देश में क्या हो रहा है? लोकतंत्र का गला क्यों घोटा जा रहा है? अगर ऐसी परिपाटी इस देश में बन गई, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर विपक्ष की जरूरत क्या है? जब आपको सदन अपने मन से चलाने हैं, आपको इतना द्वेषपूर्ण रवैया रखना है, तो फिर आपको वहां पर विपक्ष की जरूरत नहीं है। आप करिए अपनी जो मनमानी है। ओमकारेश्वर जी, लोकतंत्र का मखौल उड़ रहा है, वहां पे सभापति कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। कहां देख रहे हैं आप इसको, सिचुएशन को जाते हुए? ओमकारेश्वर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं मुझे सुन पा रहे हैं आप? अभी आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? जी जी। मैं ये कह रहा था कि देश ने देखा है कि पिछले साल 141 से ज्यादा सांसदों को सदन से बाहर किया गया था। सबको पता है कि संविधान के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पूर्ण रूप से अधिकृत होते हैं कि जो उनका निर्णय होता है वो बिल्कुल सर्वोपरि होता है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आपका पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है। जया जी के ही मामले को ले लें तो उसके बाद वहां से जो अनेक महिला सांसद निकली और बाहर उन्होंने टेलीविजन बाइट दिया, तो एक सवाल ये भी कहा कि शायद इसलिए कि वो उनको बहुत अनुभव नहीं है। तो आपके अनुभव को लेके, आपके क्षमताओं को लेके, योग्यताओं को लेके सवाल खड़ा किया जाने लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज, जैसे लोकसभा में लोग देख रहे हैं, टेलीविजन पे लोग फेस रीडिंग करते हैं, चेहरे पर देखते हैं आपके भाव। ये अपोजिशन बोल रहा है तो आपके भाव क्या है, सत्ता पक्ष बोल रहा है तो आपका भाव क्या है। आप हमेशा सत्ता पक्ष को बचाने की मुद्रा में लेते हैं। ये देश अनपढ़ लोगों का देश नहीं है। अब यहाँ बच्चा जो है इतना अवेयर हो चुका है कि सब चीजों को समझता है। तो आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। कहने को हम वेस्टमिनिस्टर पॉलिसी यूके की फॉलो करते हैं। वहां की वेस्टमिनिस्टर पॉलिसी ये कहती है कि जो स्पीकर बन गया, वंस इज ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, तो वो वाकई पार्टी से ऊपर उठ जाता है और वो निष्पक्ष होता है दोनों के प्रति, रूलिंग एंड अपोजिशन, तब उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मुझे लगता है ये प्रतिष्ठा राज्यसभा में और लोकसभा में कायम करने की जरूरत है, लोकतंत्र के पक्ष में, डेमोक्रेसी, लार्जर डेमोक्रेसी के हित में और देश के हित में।
बिल्कुल। आलोक जी, आपको क्या लगता है इस मामले पर, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष की बात को नहीं सुना जाता और जिस तरह से लोकतंत्र के साथ मखौल उड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बड़ी खामी है कि वो यहाँ पर तानाशाही चला रही है। इन तमाम आरोपों पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संसद के सत्र जो है सुचारू रूप से चल पाए? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। राहुल गांधी को आपने सुना या नहीं सुना? राहुल गांधी की फोटो आपने देखी है? जो फोटो वो प्रदर्शित कर रहे थे आपने देखी या नहीं देखी? तो जो सबसे बड़े इनके लीडरों, आलोक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर माफी के साथ।